Welcome, students. Today we are going to do a letter to God. In one video, I will not be able to. I don't think I will be able to finish the story, क्योंकि वो फिर बहुत लंबा हो जाएगा. And you people do not like to see lengthy videos, right? So I will break it into 2 or 3 videos. I will also try to discuss some question answers, those who are given in your text, and also if possible some other question answers too. This I am doing from your NCERT book First Flight. This is a textbook for class 10 CBSE board. Now, I do not have the book, so I am teaching from Xerox and printouts. So please bear with me. It's a little bit black and white and not colorful. So now, a letter to God by G.L. Fuentes. Now, this is a chapter which is about a farmer's firm faith in God. He believes too much and he has a very good faith in God, that there is God, there is someone, some superpower who is above us all, who is omnipresent, and who knows and feel all our griefs and problems. And so when he faces difficulty in life, he sends a letter to him, to God. Now the question is, um, that how much should we believe, whom to believe. um you see here it's given like, what should we put our faith in? This is the question this story delicately poses, that how and when and whom to believe, where to put our faith and all that. So let us begin the story. This is a format of this is a money order. This is a money order format. Here through in this procedure we can send money. लाइक आजकल के दिनों में तुम लोग ये सोच भी नहीं पाओगे, क्योंकि अभी जो है यूपीआई का ज़माना है, जीपे का ज़माना है, फ़ोन पे का ज़माना है, नेट बैंकिंग का ज़माना है. तो पता नहीं मिस ये क्या बोल रही है, ये सब क्यों भरना पड़ेगा, हम तो फ़ोन से ही पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे. सच है, लेकिन जब ये सब नहीं था, ओके, जब ये सब नहीं था, तब बहुत जो है फैमिली के पापा लोग या फिर जो हैं बाहर बहुत दूर काम करते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, पैसा कमाने के लिए जाते थे. और उनके घर बार, उनके परिवार, उनके बच्चे सब जो है गांव में, बहुत अंदरूनी गांव, जहाँ पर मान लो लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ पे उनका परिवार है. तो वो लोग पैसे उनको कैसे भेजेंगे? तब तो ये सब नहीं था, फ़ोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग, ये सब था ही नहीं. तो शायद ऐसा भी छोटा छोटा जगह था जहाँ पर उतना बढ़िया, मतलब बैंक का भी उतना फैसिलिटी नहीं था. अभी जैसे हर एक जगह में बैंक है, लेकिन तब नहीं था. थोड़े दिन आगे भी, 20-25 साल आगे भी चले जाएंगे तो ये सारी सुविधाएं नहीं थी. तो कैसे करते थे लोग? लोग करते थे मनी ऑर्डर के थ्रू. ये फॉर्म फिलअप करके जो भेज रहे हैं उनका भी नाम, जिनको भेजे जा रहे हैं उनका नाम, और कितने रुपए भेजे जा रहे हैं, ये सारा चीज़ जो है यहाँ पे भर के भेजे जाते थे. और पोस्टमैन जो है ये देते थे. पोस्ट ऑफिस के थ्रू ये काम होता था. एंड डाकिया डाक लाया. तो इट वाज सम वंडरफुल डेज. नाउ ओके, सो लेट अस बिगिन द स्टोरी. So let us begin. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers, and that always promised a good harvest. सो यहाँ पर एक हाउस का वर्णन किया गया है. एक वैली में, एक पूरे एंटायर वैली में जो है, यही एक घर था जो एक छोटा सा हिल के ऊपर था. और इस हाउस से जो है एक रिवर दिखता था, एक फील्ड दिखता था जहाँ पे बहुत अच्छा फसल था, फ्लावर्स थे. और ये मतलब दिख रहा था कि हाँ अच्छा फसल होने वाला है. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर. सब कुछ ठीक था, बस एक ठीक ठाक बरसात होनी ज़रूरी थी. सब कुछ ठीक था, सब কিছু ভালো ছিল, খালি একটা ঠিকঠাক বৃষ্টির প্রয়োজন ছিল. Throughout the morning, Lencho,
who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. तो थ्रू आउट द मॉर्निंग जो है, पूरा दिन भर लेंचो जो है, जो अपने फील्ड्स वगैरह, अपने फार्म को, अपने खेती को बहुत अच्छे से जानते थे, और उसने सारा दिन बस यही देख रहा था आसमान की तरफ कि कब बारिश आए, कब बारिश आए. Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, Yes, God willing. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, Come for dinner. ना वो अपने पत्नी जी से कहता है कि हाँ चलो बारिश तो होनी है, कुछ अच्छा पानी हो जाए बस. तो वो भी कहती हैं कि हाँ भगवान जैसा चाहें. अब उनके थोड़े बड़े बच्चे जो हैं वो खेत में काम कर रहे थे, छोटे जो हैं खेल रहे थे, और फिर इनको जो है खाने के लिए बुलाया गया. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल. और जैसे ही ये लोग खाना खाने बैठे, तो जैसे कि लेंचो ने बोला था, तो वैसे ही क्या हुआ, बड़े बड़े दाने बरसात के गिरने लगे. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़े बड़े जो है क्लाउड्स आने दिख रहे थे. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. सवाल आएगा कि वाई लेंचो remarked that the raindrops were actually coins. लेंचो जो है बाहर गया, वो एयर फ्रेश था, स्वीट था, जो है चारों तरफ जो है बरसात गिर रही थी, उसको अच्छा लग रहा था. वो ये फील करना चाहता था, इस प्लेजर को वो लेना चाहता था, कि बरसात के प्लेजर को, बरसात को आनंद लेना चाहता था. और जब वो आया तो उसने एक्सक्लेम किया, बहुत आनंद से कहा कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये कॉइन्स हैं, पैसे हैं. ऐसा उसने क्यों कहा? वाई? ऐसा उसने इसलिए कहा कि बिना बरसात का खेती तो होगा नहीं, तो ये जो सुंदर बरसात होगी यानी खेती भी बहुत अच्छा होगा, तो यानी पैसे भी बहुत अच्छे आएंगे फसल को बेचकर. तो इसलिए अगर ये सवाल किया जाए तो इस तरह से इसको एक्सप्लेन करना है. The big drops are 10% are 10 cent pieces and the little ones are 5s. तो इस तरह से जैसे हम लोग कहते हैं ना, बड़ा वाला कॉइन जो है वो 10 रुपए का, छोटा वाला कॉइन जो है 5 रुपए का, तो वैसे ही बड़े बड़े दाने जो हैं, बड़े बड़े जो ड्रॉप्स हैं, उसको उसने 10 सेंट कहा, और छोटे जो है उसने उसको 5 सेंट्स कहा. कि इस तरह से देखो, दीज आर लाइक मनी. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. अब देखो, उसको बहुत सेटिस्फैक्शन हुआ कि जो चीज़ की ज़रूरत था, थोड़ा सा बरसात का, वो देखो कितना सुंदर से हो रहा है. एंड वो बहुत मज़े लेके ये देख रहा था कि किस तरह उसका भुट्टे का खेत जो है, कॉर्नफील्ड्स, और उसके फ्लावर्स जो हैं, फ्लावर्स हैं तभी तो होंगे, तो किस तरह बरसात के चादर में ढक चुके हैं, इतना अच्छा लग रहा है. लेकिन तभी क्या हुआ, ज़ोर से देखो हवा बही, और उसके बाद हेलस्टोन यानी जैसे हम लोग देखते हैं ना, कभी कभी बरसात के साथ बर्फ़ के दाने गिरते हैं, बर्फ़ के दाने गिरते हैं, तो उसी तरह जो है बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े गिरने लगे. These truly did resemble new silver coins. और ये देखो, ये अभी कह रहा था कि बरसात के पानी के बूंदों को पैसे, और ये जो बड़े बड़े छोटे छोटे टुकड़े बर्फ़ के गिरने लगे, तो वो एकदम सचमुच के ही सिल्वर यानी चांदी के कॉइन दिखने लगे. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. अभी बच्चे हैं, उनको अच्छा लगता है, तो ये जो गिरने लगे, ये जो बर्फ़ के टुकड़े, उनको इकट्ठा करने के लिए जो है लड़के भागे. It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. तो इसको चिंता होने लगी, क्योंकि फसल के लिए बर्फ़ के टुकड़े ठीक नहीं हैं. पेड़ के जिस अंश में भी बर्फ़ का टुकड़ा एक बार टच करेगा, तो वो अंश जो है ख़राब हो जाता है, तो फसल एकदम ख़राब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, अगर बहुत सारा इस तरह से गिरने लगे. तो इसीलिए ये
प्रे कर रहा था कि जल्दी से ये गुजर जाए, लेकिन it did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field as white as if covered with salt. तो लेकिन वो गया नहीं। 1 घंटे तक जो है वो गिरता रहा, घर पे, गार्डन पे, हिल साइड में, कॉर्नफील्ड में, सारा जगह में। और जब रुका तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरे फील्ड में जो है किसी ने नमक छिड़क दिया हो, एकदम सादा हो गया था। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ता नहीं रहा। मैंने कहा था कि जहाँ भी बर्फ़ का टुकड़ा टच करेगा वो खराब हो जाएगा, पत्ते का टच करेगा तो पत्ता गिर जाएगा, फूल को टच करेगा तो फूल खराब हो जाएगा, गिर जाएगा। तो इसीलिए कोई भी एक पत्ता नहीं बचा था, कोई भी एक फ्लावर्स नहीं बचे थे। लेंचो सोल वॉज फील्ड विथ सैडनेस, ये बहुत उदास हो गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, और जब स्टॉर्म ख़त्म हो गया, तूफान चला गया, तो वो जो है अपने खेत के बीच में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, अब जो है वो अपने बच्चों से कहा, मतलब लड़कों से, अपने बेटों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. अभी लोकस्ट मतलब एक तरह का जो ये 2020 जो साल चला गया, ये हुआ था बहुत, वो पंजाब हरियाणा के वो साइड में ये लोकस्ट्स का एक झुंड आया था जिसने बहुत फसल ख़राब कर दिए थे। ये एक तरह के पतंग होते हैं, छोटे छोटे, जो एकदम झुंड में आते हैं और फसल को खा के तबाह करके निकल जाते हैं। तो ये जो है वो लेंचो कह रहा है कि अगर लोकस्ट्स भी आते तो भी शायद कुछ फसल बचता। अब हेल ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, ये बर्फ़ के टुकड़ों ने। तो ये साल जो है हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, बहुत दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, इतना परिश्रम किया कुछ नहीं हुआ। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, आज हम लोग जो है यहीं तक पढ़ेंगे। तो वो जो है अपने में आलोचना कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे कि इतना काम किया हमने, हमारे बच्चों ने, सब बेकार, कोई हेल्प नहीं करने वाला, और ये साल जो है बिल्कुल भूखा जाएगा। तो आज यही है, नेक्स्ट वाला हिस्सा लेके नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को जो भी CBSE बोर्ड में है, क्लास 10 में है, उनको शेयर करो मेरा वीडियोस, लिंक शेयर करो, और उनको भी जो है सब्सक्राइब करने बोलो, ताकि आगे आने वाले वीडियोस जो हैं मिलते रहें। बहुत जल्द मैं इसका नेक्स्ट वाला हिस्सा लेके वापस आऊँगी। टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय स्टूडेंट्स।